اورنگی ٹاؤن 11:30 میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ شہر میں کرائم کی بڑھتی وارداتیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کراچی امن کے لیے پولیس میں ریفارم کے لیے اقدامات کریں۔ مزید جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید۔ بالکل جی، ڈاؤ یونیورسٹی اوجا کیمپس میں آتش زدگی کا واقعہ، فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں پہنچی اور انہوں نے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ آگ کو کنٹرول کیا۔ آگ جو ہے وہ چیرے چیدہ مختلف حصوں میں لگی ڈاؤ یونیورسٹی کے، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق اور شاہدین کے مطابق آگ جو ہے وہ خود سے اس مقام پر نہیں لگی بلکہ باہر سے جو ہے وہ ایک اور دوسرے مقام پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ وہاں سے شعلے اڑے اور درختوں کو پہلے اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسپتال کے اندر OPD اسٹورز اور دیگر جو ایریاز ہیں وہاں پر جو شیڈز لگے ہوئے فارمیکا کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیڈز کے ساتھ علاوہ فرنیچر ہے اس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فائر بریگیڈ فوراً پہنچی۔ یہاں جو شاہدین ہیں بروہی فاؤنڈیشن ایمبولینس سروس چلاتے ہیں، یہاں موجود تھے، انہیں سے جانتے ہیں۔ جو بتائیے گا کیسے فوری رسپانس کیا اور کیا دیکھا تھا آپ نے؟ سب سے پہلے جو آج کا جو واقعہ ہوا ہے، انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ جو وقوع ہوا ہے یہ شارٹ سرکٹ سے نہیں ہوا ہے بلکہ گلشن نور کے برابر میں جو جنگل ہے اس جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی، تو ہوا ایک دم تیز ہوا، ہوا کے ذریعے جو چنگاریاں اڑی ہیں سب سے پہلے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی اوجا کیمپس مین گیٹ کے سامنے جو کھجور کے درخت ہیں ان کو لپیٹ میں لیا۔ اس کے بعد پھر ہوا سے چنگاریاں اڑی ہیں ڈاؤ میڈیکل OPD کے اوپر، OPD کی جو شیڈ ہے اور شیڈ کو افیکٹ کیا ہے، اس کے بعد OPD کی چھت کو بھی افیکٹ کیا ہے، اور ودن 20 منٹس بروئی فاؤنڈیشن کے جو یہاں کے میرے انچارج ہیں چاکر ہیں اور صغیر بھائی ہیں، انہوں نے فوراً فائر بریگیڈ کو اپروچ کیا ہے، کال کیا ہے، ودن 20 منٹس فائر بریگیڈ پہنچا ہے۔ تو فائر بریگیڈ کے ساتھ ہی میرے جتنے بھی یہاں کے والنٹیئرس ہیں انہوں نے پانی کولر سے بھرا ہے اور انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی ہے۔ ودن 1 آور انہوں نے آگ اوور کم کیا ہے، آگ انہوں نے بجھا دی ہے۔ بالکل جی، جتنے تمام درخت جس اوجا کیمپس کی ڈاؤ یونیورسٹی کی جو دیوار ہے فرنٹ کی، اس کے ساتھ جو ہے وہ قداور درخت کھجور کے اور دیگر لگے ہوئے تھے جن کے پتے کچھ سوکھے ہوئے تھے، جو باعث بنا آگ کو اپنی لپیٹ میں لینے کے، اور اس سے بعد چنگاریاں اڑتی ہوئی۔ اور اس کے اندر فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ جانی نقصانات کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ یعنی شاہدین کے مطابق آگ جو ہے وہ باہر سے شعلے آئے جس کے باعث لگی، لیکن اب بھی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں گی اور فائنل رپورٹ میں حتمی بات بتائی جائے گی کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی۔ جی، فرنگی کازوے پر پولیس موبائل الٹ گئی، حادثے میں اہلکار زخمی ہو گیا جسے فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سلمان سلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ اورنگی صنعتی ایریا انویسٹیگیشن پولیس گرفتار ملزم کا ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد واپس جا رہی تھی کہ کورنگی کازوے پر پولیس موبائل اچانک بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں اہلکار زخمی ہو گیا جسے فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد سوار اہلکار اپنی مدد آپ کے تحت موبائل سے نکلے۔ ہم تو موبائل میں ملزم کو کورٹ سے لے کر آ رہے تھے، ہمارے صاحب گاڑی چلا رہے تھے، ہو جاتا ہے روڈ میں حادثات ہو جاتے ہیں، اچانک بس گاڑی غلطی ہو گئی، یہی پتہ ہے۔ پولیس کے مطابق حادثہ موبائل کے اگلے حصے کا ٹائی راڈ ٹوٹ جانے سے پیش آیا۔ حادثے کے بعد سڑک پر ٹریفک بھی جام ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع پر ٹریفک پولیس اہلکار بھی پہنچ گئے اور ٹریفک کی روانی بحال کر دی۔ نقصان اس میں بس یہ موبائل کو ہوا ہے، باقی ایک جوان ہے جو معمولی بہت زخمی ہوا ہے، باقی سارے جوان ٹھیک ہے۔ یہ جوان موجود تھا بیچ میں جو باقی صحیح ہے، ڈرائیور اور افسر جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو پیچھے ایک جوان بیٹھا ہوا تھا وہ معمولی زخمی ہوا ہے جس کو اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ نے کرین کی مدد سے موبائل کو سیدھا کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ کیمرامین اجران چیپا کے ساتھ سلمان سلیم، CT 21۔ سندھ کا نیا IG کون ہوگا؟ غلام نبی میمن، امیر شیخ، جاوید عالم اوجھو کے ناموں پر غور جاری ہے۔ غلام نبی میمن کے نام پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ غلام نبی میمن کو IG سندھ لگانے کے خواہش مند بھی نظر آتے ہیں، اور IG سندھ رفعت مختار نے تبدیلی سے پہلے سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ بھی کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ IG سندھ کی تعیناتی کا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا، سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ وزیر اعلیٰ نے IG سندھ کے لیے غلام نبی میمن، امیر شیخ، جاوید عالم اوڈو کے نام 4 مارچ کو بھیجے۔ وزیر اعلیٰ سندھ غلام نبی میمن کو IG بنانے کے موقف پر قائم۔ غلام نبی میمن کو IG سندھ مقرر کرنے پر سندھ اور وفاق میں ڈیڈ لاک۔ ذرائع کے مطابق غلام نبی میمن پر کچھ اہم شخصیات کو اعتراضات ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات کی جانب سے بھی غلام نبی میمن کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تبدیلی کی صورت
सूरत में IG सिंध रफत मुख्तार की जिम्मेदारियां वफाक के सुपुर्द कर दी जाएंगी। IG सिंध तब्दीली से पहले बड़े पैमाने पर तबादले करने लगे। IG सिंध की जानिब से 21 SPs का तबादला किया जा चुका है। कराची के 3 अहम DIGs बदल दिए गए। DIG वेस्ट, DIG ट्रैफिक और DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को तब्दील कर दिया गया। इरफान बलोच को DIG वेस्ट तैनात कर दिया गया। अहमद नवाज चीमा को DIG ट्रैफिक बना दिया गया। इकबाल डारा DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच हो गए। जावेद जसकानी DIG मीरपुर खास तैनात कर दिए गए। SSP ईस्ट इरफान बहादुर को ओहदे से हटा दिया गया। SSP फर्रुख रजा को SSP ईस्ट तैनात कर दिया गया। SSP इरफान बहादुर को CPO कराची रिपोर्ट करने को हुक्म दे दिया गया। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ का सिलसिला तेज कर दिया गया। सेक्रेटरी तवानाई समेत दीगर महकमों के अफसरान की अखाड़ पछाड़ कर दी गई। आज़ाद नोरियो की रिपोर्ट। सैयद मुराद अली शाह सरकार का ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर व तबादले। तकर्रुरी के मुंतजिर 21 ग्रेड के ऑफिसर डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई को सेक्रेटरी महकमा बराए तवानाई तैनात कर दिया गया। 21 ग्रेड के ऑफिसर सिक्योरिटी तवानाई मुसद्दिक अहमद खान को ओहदे से हटाकर उनको महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। सेक्रेटरी महकमा समाजी आबादकारी मोहम्मद यासीन शर बलोच का तबादला करके दूसरी बार DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। DG SBCA इसाक खोड़ो को ओहदे से हटाकर उनको महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। डायरेक्टर जनरल लियारी तरक्की अथॉरिटी अतर हुसैन मीरानी का तबादला करके उनको नया सेक्रेटरी महकमा को ऑपरेटिव तैनात कर दिया गया। कमिश्नर लाड़काना अब्दुल वहीद शेख को ओहदे से हटाकर उनको महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। तकर्रुरी के मुंतजिर गुलाम मुस्तफा को नया कमिश्नर लाड़काना तैनात कर दिया गया। आज़ाद नोडियो सिटी 21। और इस्तेमाल शुदा दरामदी गाड़ियों की तादाद में बड़ा इजाफा हो गया। रवा माली साल 8 माह में दरामद 259% बढ़ गई है। मजीद देखते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट। दरामदी बिलों में मुसलसल इजाफा, इस्तेमाल शुदा दरामदी गाड़ियों की तादाद बढ़ने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल 8 माह में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदाद में 259% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक इस्तेमाल शुदा दरामदी गाड़ियों के लिए 16 करोड़ 65 लाख डॉलर खर्च किए गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल के पहले 8 माह में 4 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च किए गए थे। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से दरामदाद पर आयद पाबंदी में नरमी के बाद इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदाद बढ़ी, चूँकि मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 8 माह में दरामदी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तादाद में 680% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 16,500 इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामदी की जा चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल पहले 8 माह में 2100 इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद की गई थीं। माहिरीन का कहना है कि टैक्सेस, ड्यूटी और खाम माल की लागत बढ़ने से मुकामी कार साज कंपनियों की फरोख्त नुमाया कमी हुई है। अशरफ खान, सिटी 21। बल्क कार्गो प्राइवेट कंपनी के हवाले करने से ताजरों पर इजाफी बोझ। फी जहाज 1 करोड़ 50 लाख रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। पोर्ट चार्जेस में इजाफा, अजनास की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार। कस्टम एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महमूदुल हसन का कहना है, पहले बल्क कार्गो के चार्जेस 300 रुपए टन थे, लेकिन अब प्राइवेट कंपनी 580 रुपए फी टन वसूल कर रही है। तो पिछले 2 महीने से हम तो रोज ट्रेडर से यही सुन रहे हैं, मर गए जी, हम बर्बाद हो गए जी, कास्ट ज़्यादा हो गई। उसकी वजह यह है कि हर बंदा प्राइवेट बिजनेस करता है, वो अपने रेट लगा लेता है। पहले 100 रुपये KPT का वारफी था और वो हैंडलिंग खुद करते थे, तो वो कहते हैं जी बड़ा नॉमिनल से चार्जेस थे। अब टर्मिनल कहता है सारी चीज़ें मैं खुद करूंगा, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। हुकूमत को चाहिए बजट में प्राइवेट बिल के जरिए पोर्ट चार्जेस और शिपिंग कंपनियों के किरायों का तयन करे। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे नई गवर्नमेंट से कि जी आप एक तो कोई लेजिस्लेशन करें, जायज़ प्रॉफिट हर कोई कमाए, लेकिन किसी कायदे कानून में हो। ये तरीका नहीं है कि जिसका जो दिल करता है वो रेट लग रहता है। टर्मिनल्स के रेट फिक्स हों, शिपिंग लाइन के रेट फिक्स हों। महमूदुल हसन का कहना है, प्राइवेट कंपनी पोर्ट चार्जेस में इजाफे से तकरीबन एक जहाज से 1 करोड़ 50 लाख रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। IMF ने पाकिस्तानी मईशत की मुश्किलात का हल दे दिया। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन का कहना है, बिजली गैस समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुकसानात मुसलसल बढ़ रहे हैं। IMF ने टैक्स टू GDP दोगुना करने के लिए तमाम रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान मांगा है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी मईशत की बहाली का अज़म, IMF से नया प्रोग्राम लेने की तैयारी। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं, पाकिस्तानी मईशत की बहाली की राह में बहुत मुश्किलात हैं, अहम फैसले करना होंगे। तमाम सेक्टर में नुकसानात मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसलिए कर्जे लिए
जा रहे हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय हो गया। अब जल्द पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। IMF के प्रोग्राम में हैं, हम अच्छे बच्चों की तरह से हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1.1 बिलियन डॉलर जो भी मिलना है, जो लास्ट ट्रांच है इसकी जो स्टैंड बाई प्रोग्राम की, वो मिल जाएगी IMF से। और फिर उसके बाद ये कि आपको नए प्रोग्राम के लिए भी उनके साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए भी आपको उनके साथ नेगोशिएशन करना है। और आज गालबन उसी के ऊपर कुछ उसकी आउटलाइंस हमारे इस्लामाबाद में जो IMF का डेलीगेशन है उसके साथ कुछ तय हो रही हैं। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप ने कहा कि कर्ज की अदायगी के लिए IMF से नया प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। IMF ने मुश्किलात के हल और नए प्रोग्राम के लिए शर्त रख दी है, जिसमें टैक्स वसूली को दुगना करना और रिटेलर होलसेलर समेत सब पर टैक्स नेट में लाना होगा। वो कह रहे हैं कि जी आपका जो टैक्स टू GDP है उसको आप डबल करें। इस वक्त आप 9,400 अरब रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि तकरीबन वो चाह रहे हैं कि 18,000 अरब रुपए के ऊपर इसको लेके जाएं। और पाकिस्तान की इकॉनमी का अगर आप साइज़ देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन तो है। लेकिन बात यह है कि मुमकिनात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको किस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे। मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि IMF ने हुकूमत से नुकसान वाले इदारों की निजकारी का प्लान मांगा है। अगर हुकूमत ने दुरुस्त प्लान दिया और अमल दरामद होता नजर आया तो ही IMF नया प्रोग्राम देगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने होलसेल ग्रोसर्स का 90 रुपये फ़ी किलो गंदम मिलने को मुस्तरद कर दिया है। रहनुमाओं का कहना है कि एक्स मिल्स 2.5 नंबर आटा 113 रुपये और फाइन आटा 127 रुपये फ़ी किलो में फ्राहम कर रहे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट है। और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन चौधरी आमिर ने कहा कि दरामदी गंदम 94 से 95 रुपए फी किलो मिल पहुँच कर पड़ रही है। 2 हफ्तों में आटे की कीमत में कमी हुई है। एक्स मिल 2.5 नंबर आटा 113 से 114 रुपए फी किलो और एक्स मिल फाइन आटा 127 रुपए फी किलो में फराहम कर रहे हैं। गंदम जैसे रशियन वीट आज तकरीबन 9,400 से 9,500 है मिल पहुँच, तो उसके हिसाब से आटा आजकल 113-14 रुपए किलो 2.5 नंबर मिल रहा है आपको। एक्स मिल मिलेगा और फाइन जो है 126 से 127 रुपए किलो। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स चेयरमैन ने कहा कि होलसेल्स ग्रोसरीज को फ्लोर मिल्स के हिसाब किताब नहीं पता। बताया कि दरामदी गंदम के 6 जहाज आने हैं और मार्च के इख्तिताम तक दरामदी गंदम पूरी आ जाएगी। साफ कहा कि पूरे साल गंदम की कोई किल्लत नहीं हुई है। गवर्नमेंट को मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अब वीट की खरीदारी और ये सारे मामला अब इनमें थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। ये ओपन मार्केट पे छोड़ दिया जाए। जिस तरह मार्केट जो फ्लो होगा मार्केट का वैसे जाएगा। अगर आपको शॉर्टेज फील होगी तो आप गंदम इंपोर्ट करेंगे, जैसे जो हमने इंपोर्ट किया है, तो उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कोई शॉर्टेज आटे की होने वाली नहीं है और ना ही हो गया इंशाल्लाह। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि सिंध हुकूमत को गंदम की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आलमी मार्केट में गंदम की कीमत कम हुई तो आटे की कीमत मजीद कम हो जाएगी। बताया कि बिजली और ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ाने की वजह से लागत भी बढ़ी है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मई में मुनक्किद होने वाले सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप की तैयारियों के सिलसिले में कौमी हॉकी तरबियती कैंप का इनेकाद कोयटा में किया जाएगा। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शैला रजा ने ऐलान कर दिया। शैला रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PHF मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी फौरी तौर पर करने के लिए सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन को अहकामात भी जारी कर दिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नई सदर इन एक्शन, कौमी टीम के उरूज को वापस लाने के लिए पुरअज़म। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शैला रजा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुल्तान अजान शाह हॉकी कप की तैयारियों के सिलसिले में कौमी हॉकी तरबियती कैंप का इनेकाद कोयटा बलूचिस्तान में किया जाएगा। बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के वफ्द ने गुज़िश्ता रोज मुलाकात की। इन्होंने मुझे दरख्वास्त की है कि बलूचिस्तान में खिलाड़ियों की जदीद ट्रेनिंग सहूलियात मौजूद हैं और वो ख्वाहां हैं कि कौमी सतह के इवेंट्स का इनेकाद बलूचिस्तान में कराया जाए। पर ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप्स लगेंगे और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट्स जो हैं उसके लिए हमारी टीम जो है वो अपनी प्रैक्टिस करेगी और यही आज की सबसे बड़ी बात है। और हमें अपनी पाकिस्तान की टीम को लेके आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की हॉकी को लेके आगे बढ़ना है। सदर PHF शैला रजा ने कहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को एक नॉन प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जा रहा था। मामलात हॉकी और खिलाड़ियों के मसाइल के बजाय सदर फेडरेशन के मसाइल पर आ गए हैं। ऐसे वक्त में खिलाड़ियों के हालात पर कोई बात नहीं कर रहा। हॉकी और हॉकी के खेल के बजाय, हमारे खिलाड़ियों के बजाय मामलात जो हैं वो ख़राब होकर सिर्फ हॉकी फेडरेशन पे बात हो रही है। हमारी हॉकी टीम कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे गुजर रही है, खेल का मेयार क्या है, कहाँ जाती है, उनके साथ क्या होता है, इस पे कोई बात नहीं करता।
सदर PHF का मजीद कहना था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वेबसाइट की तैयारियों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एहलियान लियाकताबाद के लिए कचरा कुंडी ख़त्म करके ग्रीन बेल्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब कहते हैं कि आवाम की सहूलियात के लिए ग्रीन बेल्ट बनाया गया है, अब इसकी हिफाजत आवाम ही करेगी। सैयद मानगुल की रिपोर्ट। कचरा कुंडी खत्म, ग्रीन बेल्ट का इफ्तिताह लियाकताबाद में शहरियों का गया। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इलाके में कचरा साफ करके ग्रीन बेल्ट कायम कर दिया गया। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब कहते हैं यहाँ सीवरेज का पानी मौजूद था और कचरे के ढेर होते थे। हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर जो है कचरा कुंडी बनी हुई थी और सीवरेज का निज़ाम जो है यहाँ पर ख़राब था। बहरहाल हमारे यहाँ के यूसी चेयरमैन ने और हमारी टीम ने मिलकर कोशिश की कि हम हर यूसीज़ में जो है पार्क बना रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी यूसी थी जहाँ पर कोई पार्क नहीं था। तो हमने इस जगह को सोचा कि इस जगह को हम एक ग्रीन बेल्ट बना दें, जिसमें जो हम पार्क अगर नहीं दे सकते लेकिन इस जगह को ऐसा बना दें कि इसमें पार्क जो है वो नज़र आए। ग्रीन बेल्ट में बच्चों के लिए झूले भी लगा दिए गए, जिस पर बच्चों की खुशी दीदनी थी। और झूले भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो मैंने अभी झूला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर पहली बार आई थी ना जब। अंकल ये पार्क बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं और बहुत सारा मजा आई है हमारे को यहाँ पे खेलते हुए। इस मौका पर टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतजामिया ने शहरियों से अपील भी की कि पार्क की हिफाजत में इंतजामिया का साथ दें। कैमरामैन जहांगीर के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची एसोसिएशन ऑफ कारपेट, कर्टन एंड फर्नीचर और गुलशन इकबाल मर्चेंट्स एसोसिएशन के तहत इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ताहा मलिक की रिपोर्ट में देखें। तो और बरकतों के महीने में नेकियां समेटने का सिलसिला जारी। शहर से ताल्लुक रखने वाली ताजिर बिरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात के लिए इफ्तारी का एहतमाम। कराची एसोसिएशन ऑफ कारपेट, कर्टन एंड फर्नीचर के चेयरमैन का कहना था कि माह मुबारक में ताजिरों को दरपेश मसाइल का हल निकालना चाहिए ताकि इन्हें कारोबार में आसानी फराम हो सके। असल जब तक ताजिर बिरादरी मिलकर आवाज़ नहीं उठाएगी उस मुल्क की भलाई और बेहतरी नहीं आएगी। इस मुल्क की भलाई और बेहतरी इसी चीज़ में है। हमारे यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ उरूज में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसलों मसाइल यही है मेरे भाई, सब मिल के हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल होंगे। शुक्रिया। दावत इफ्तार के मौके पर सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज कादरी ने भी शिरकत की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें माह मुबारक में गजा के शहीदों को नहीं भूलना चाहिए। फ़लस्तीन के लिए खुसूस दुआ फरमाइए और उनका बढ़ चढ़ के जो भी ज़राए हैं, बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, मुस्लिम हैंड से या दीगर और तंजीमें जो वो राशन पहुंचा रही हैं, तो हमें बल्कि कहते थे हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, हमें कफन भी भिजवा दो। एक इज्तिमाई तौर पे क्या आज हमें सोचना है, मेरा और कलमे का और आपका रिश्ता है, तो हमें उस रिश्ते की बका के लिए मिलकर काम करना है। दावत इफ्तार में PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, MQM पाकिस्तान के MNA हसन साबिर, TMC जिना टाउन के रिजवान अब्दुल समी ने भी शिरकत की।